ثانیہ کانا زندگی بھر کے لیے درد دے گیا. صرف لاہور ہی نہیں، ہر درد دل رکھنے والا غم سے نڈھال ہے. کئی خاندانوں کے خواب بکھرنے کی دردناک داستان ہے. معصوم بچوں کے جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا. 14 ننھے پھولوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. جن کے پیارے اس دنیا سے گئے، ان والدین کے لیے دکھ بیاں کرنا ناممکن ہے. کہاں سے لائیں طاقت، کون اٹھائے گا یہ معصوم بچوں کے بھاری بھاری جنازے. ہستی مسکراتی ننھی ہستیاں سب کو رلا گئیں. کوئی پوچھے ان ماؤں سے جن کی گودیں اجڑ گئیں. اپنے جگر گوشے کا جنازہ اٹھانے کے لیے باپ کہاں سے لائے وہ کاندھا. کاہنا کے ٹیوشن سینٹر میں چھت کیا گری، کئی گھرانوں کے چراغ گل کر گئی. المناک سانحہ پر پورے شہر کی فضا سوگوار ہے. ہر آنکھ اشکبار، ہر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. پھول جیسے بچوں کی قبروں پر گلاب بھی مان پڑ گیا. آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سانحہ کاہنا میں جاں بحق ہونے والے بچوں کو منو مٹی تلے سلا دیا گیا. چھت جو گرن والی ٹیچر دا فرض بندا سی بچیاں نوں سین چ لے کے بیٹھ جاندی، چھٹی دے دیندی. ایڈی لاپرواہی نہیں سی کرنی چاہیے بھائی ٹیچر نوں. 3 بیٹے سی، 1 بیٹی سی. عبداللہ دوسرے نمبر والا فوت ہو گیا. دوسرے جڑے وہ بھی بھج کے گھر آ گئے، وہ بھی نال گئے سی. وہ واپس بوئے کے بیٹے واپس آئے گھر، وہ بچ گئے. عبداللہ دور گیا. جن ماؤں کے لال اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھروں میں کوہرام مچا ہے. ہمیشہ کی طرح اس سانحے کے بعد بھی اقتدار کے ایوانوں سے آواز آ رہی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ قانون حادثے سے پہلے حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کون دے گا ان 14 معصوم جانوں کا حساب؟ متاثرہ گھر میں آج علم کی روشنی کے بجائے سوگ کا سما ہے. جہاں معصوم بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، وہاں آج خاموشی چھائی ہوئی ہے. بکھری کتابیں اور ادھورا تعمیراتی کام سانحے کی گواہی دے رہا ہے. سامعہ سعید کی رپورٹ دیکھیے. میرے کپ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ کاہنا کا ٹیوشن سینٹر ہے جو 14 معصوم جانیں نگل گیا ہے. اور ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے، آپ کو یہاں کے حالات دکھائیں گے کہ کتنی چھوٹی سی جگہ پر کتنی بڑی تعداد میں بچے یہاں پر آیا کرتے تھے، لیکن کوئی سانحہ ہونے سے قبل کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور اب یہاں پر علاقہ بھی سوگوار ہے اور ہر گلی، ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں ہی صفحہ ماتم بھی بچھی ہوئی ہیں. تو آئیے آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں کہ اس ٹیوشن سینٹر کی خستہ حالی کیا تھی اور کیا یہاں پر بچوں کو آنا چاہیے تھا. میں اس وقت جائے کنواں پر موجود ہوں. کیمرہ مین احمد رضا اگر آپ کو دکھا سکیں تو ہم یہاں پر جگہ جگہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں. یقینی طور پر بچے یہاں پر پڑھنے آتے تھے اور ماں نے اپنے بچوں کو بڑا تیار کر کے بھیجا ہوگا. یہاں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت چھوٹی اور کنجسٹڈ جگہ ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹائم میں اتنے بڑے بچوں کا یہاں پر موجود ہونا اٹ سیلف ہی ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اتنے سارے بچے یہاں پر موجود کیسے تھے. تو میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا بھی سکیں تو یہ ایگزیکٹ یہ وہ جگہ تھی. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو چھت ہے وہ کولیپس کی تھی. ہم آپ کو اس کے اوپر سے بھی مناظر دکھائیں گے کہ جب یہاں پر کام چل رہا تھا تو کیا بچوں کا یہاں پر موجود ہونا اٹ سیلف ہی ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. اور میں آپ کو یہاں پر پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے کہ شاید ہم 5 قدم اگر چلیں تو یہ کمرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر 19 20 یا 22 لوگوں کا یہاں پر موجود ہونا اٹ سیلف ایک سانحہ ہے، اٹ سیلف ایک حادثہ ہے. اتنی گرمی اور حبس کے موسم میں اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ کتابیں ہیں. یقیناً بچے جو ہیں پڑھ رہے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں. سمر پیکس بھی یہاں پر بچوں کے موجود ہیں جو کہ کچھ تو کمپلیٹ کر لیے گئے لیکن کچھ خالی رہ گئے اور کافی گھروں کے جو چراغ ہیں وہ بجھ گئے. ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی حبس اور گرمی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ پر آخر 20 لوگ موجود ہی کیسے تھے؟ کیوں اس سے پہلے نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیوں ٹیوشن سینٹرز کو جو ہے وہ رجسٹر نہیں کیا جاتا اور بچوں کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے؟ آپ کو مزید بھی اس کا روف ٹاپ کا بھی آپ کو منظر دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ جب یہاں پر کام چل رہا تھا تو یہاں پر بچوں کو چھٹی کیوں نہیں دی گئی. تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں. اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آخر یہاں پر کون سی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا. میرے کیمرہ مین احمد رضا اگر فوکس کر کے دکھا سکے تو یہ جو ٹائلز آپ کو لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اتنا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، جبکہ یہ پورا ایریا جو کولیپس کیا ہے وہ یہ ہوتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ کام چل رہا تھا تو یہاں پر بچوں کو اس دن چھٹی کیوں نہیں دی گئی؟ بچوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے صرف ایک لاپرواہی کی وجہ سے کہ جب یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور وہ بھی چھت کی کنسٹرکشن کا
का काम चल रहा है, तो आखिर क्यों बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई? सामी आपका शुक्रिया। कहना आने के बाद एक तरफ इंतज़ामिया और पुलिस मुतहरिक नज़र आ रही है, तो दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदानों के सवालात और शिकायत भी सामने आ रही हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO लाहौर मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे। उधर ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड नहीं था और शहर भर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स, मखदूश इमारतें और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन ने रेस्क्यू और अस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाते हुए बर वक्त इमदाद ना मिलने की शिकायत की हैं। इसमें मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहांगीर खान होंगे, दानियल उमर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जहांगीर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब भी आऊँगा। सबसे अहम सवाल इस वक्त जो हम सबके ज़हनों में वो यही है कि इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? इस वक्त क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जहांगीर? शाहजेब, अब तक जो जिम्मेदार करार दिया गया है वो मालिक मकान, इसके 3 भाइयों और छत पर काम करने वाले मिस्त्री को करार दिया गया है और इन्हीं को मुकदमा में नामजद किया गया है। मुकदमा में दफात के बाद एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट जो कि वजाहत तलब भी है वो ये है कि स्कूल टीचर जो कि मालिक मकान रेहान की अहलिया है और ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज है, इस खातून का नाम उमैला है, उमैला ज़ौजा रेहान, इसका नाम भी FIR में शामिल किया गया है। क्या ये नामजद मुलजिमा है या नहीं है, ये एक बड़ा टेक्निकल और वजाहत तलब नुक्ता है, क्योंकि FIR में ये तहरीर है, FIR का मतन ये है कि हादसे के वक्त उमैला बच्चों को कमरे में ट्यूशन पढ़ा रही थी और दूसरी सतर में ये लिखा है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त कमरे में बच्चे मौजूद थे और घर में ट्यूशन सेंटर कायम करके और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का इजाफी बोझ डालकर गफलत और लापरवाही की गई, जिससे ये हादसा पेश आया और 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स से ये सवाल पूछा कि क्या उमैला मुलजिमा है या नहीं है, तो उनका ये कहना था कि ये तायुन इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस जो है वो करेगी। FIR में मुलजिमा उसको करार दिया गया है या नहीं दिया गया, इसका कोई वाज़ेह जवाब अभी तक नहीं मिल सका। सरबराह लाहौर पुलिस से भी इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जो इस्तिगासा उनको बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया उस इस्तिगासे पर मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश इस बात का तयन करेगी कि इन अफराद में से जो कि घर के अफराद हैं 5 वो जिनको कि नामजद मुलजिम करार दिया गया है और एक खातून जो कि ट्यूशन टीचर है, इनमें से मुलजिम कोई है या नहीं है, तफ्तीश इस बात का तयन करेगी। लेकिन कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ये FIR जो है इसमें लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, ये FIR कमज़ोर है, इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो कमज़ोर हैं और इसके अलावा जो इसका मतन है वो ज़िम्मेदारों का तयन नहीं करता, क्योंकि किसी भी सरकारी इदारे के अहलकार को ज़िम्मेदार गफलत का मुर्तकिब FIR में करार नहीं दिया गया। लेकिन अब चूँकि इसकी इंक्वायरी ज़िला इंतज़ामिया भी कर रही है, पुलिस इस मुकदमे की तफ्तीश भी कर रही है, तो तफ्तीश और इंक्वायरी रिपोर्ट्स में क्या नताइज सामने आते हैं, किसको ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, ये आने वाले 1 से 2 दिन में वो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। अब से कुछ देर पहले सरबराह लाहौर पुलिस और कमिश्नर लाहौर ने जाए वक़ुआ का विज़िट किया, मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात भी की, उनके जो खदशात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुने और उनको दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। लेकिन जो इलाका मकीन हैं उनका ये कहना है कि ये तमाम तर ज़िम्मेदारी किसी एक सरकारी इदारे पर कम अज़ कम फिक्स ज़रूर करनी चाहिए, किसी एक इदारे का नाम कम अज़ कम सामने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में जो मसाइल हैं इलाका मकीन उनसे खासी परेशान है और उनका ये कहना है कि इससे पहले बिल्कुल जहांगीर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ है, जहां पे भी नजर जाएगी, फिर गंदगी बहुत ज़्यादा है, सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है, बिजली वहाँ पर आती नहीं 6-6, 8-8 घंटे, ये सब कुछ भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये मुतासरा ख़ानदान अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आपकी तरफ आते हैं दानियल, आप बताएगा, कहा यह जा रहा है, शिकवा ये किया जा रहा है मुतासरा फैमिलीज़ की तरफ से कि अस्पताल में अमला मौजूद नहीं था, रेस्क्यू की टीमें बहुत ज़्यादा लेट पहुँची, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? और फिर एक और चीज़ जो कि हमारे रिपोर्टर्स ने भी उठाई वो ये कि जो रेस्क्यू का इनिशियली अमला पहुँचा था वो वेल इक्विप्ड नहीं था। देखिए महक, बिल्कुल इसी तरह से जो सूरत हाल है, अभी देर पहले मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं उनसे मुलाकात भी हुई। एक फ़ैमिली जिनके 2 बच्चे इर्तिज़ा और रिमशा जो इस हादसे में जान से चले गए,
उनकी जब दादा से, उनके वालिद से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो इस इलाके के लोग थे और उस टाइम वो रेस्क्यू को जो है वो कॉल करते रहे, रेस्क्यू को बुलाते रहे, मगर रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर ताख़ीर से पहुँची और उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला। उन्होंने ये भी बताया कि बेशतर ऐसे बच्चे थे जो कि उस वक्त ज़िंदा थे, रो रहे थे और अपने वालिदैन को जो है वो कह रहे थे कि हमें यहाँ से निकाला जाए, बचाया जाए। जिस वक्त उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो फैमिली ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अस्पताल के अंदर जो मुनासिब अमला है वो मौजूद नहीं और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी किल्लत थी। खुद ही जो CPR का अमल है वो बहुत सारी जो लोग हैं नर्सेज ने फैमिलीज़ को बता दिया जो वो खुद ही कर रहे थे, मगर जो 14 बच्चे हैं वो इस वाक़े के अंदर बच नहीं सके। साथ ही साथ जो फैमिलीज़ हैं वो ये भी शिकवा करते हुए नज़र आती हैं कि जो इलाका है इसके अंदर कभी भी कोई जो इंतज़ामिया है उन्होंने आके देखा ही नहीं कि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो क्या बाय लॉज के अकॉर्डिंग हैं, उनकी यहाँ पर सूरत हाल क्या है, जो इमारतें हैं वो मखदूश हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पर जो काम है वो किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ अब जो आज कुछ देर कबल जो है वो हमारी जो खातून टीचर हैं जो कि मालकन भी हैं इस ट्यूशन सेंटर की, उनसे भी जब बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि उनका जो मकान है उसकी हालत इतनी मखदूश नहीं थी, मगर पता नहीं कि ये वाक़या जो है ये किस तरह से उनका कहना है कि रूनुमा हुआ। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की निशानदेही भी की कि 30 से 35 बच्चे जो है वो उनके पास यहाँ पर ज़ेर तालीम थे, मगर गुज़श्ता रोज़ 20 बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए। उनकी अपनी बेटी भी इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुई है और साथ में उन्हें भी जो है वो बहुत सारे ज़ख्म आए हैं और अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि इस वक्त तो उनका इलाज जारी है, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं। मगर जिस तरह जहांगीर खान ने एक पॉइंट उठाया कि उन्हें भी बतौर मुल्ज़िमा जो है वो इसके अंदर रखा गया है, तो पुलिस अस्पताल के अंदर जो है वो उनसे भी वहाँ जाकर तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल सही। उस्मान अली, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उस्मान, जैसा कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो ट्यूशन सेंटर्स रजिस्टर्ड नहीं था ये वाला भी, और एक हफ्ता कबल मखदूश इमारतों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन पहली बात तो ये कि ये कार्रवाइयाँ क्या अब शुरू की गई हैं, इससे पहले से नोटिस जारी हो रहे थे? और सेकेंडली, जब हम बात कर रहे हैं इस ट्यूशन सेंटर की, एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो यहाँ पर इस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कोई SOPs होने चाहिए कि किस तरीके से अलाउ किया जा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर के बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा देखिए शाहजेब, अगर शहर के बड़े इलाकों की बात की जाए, मेन इलाकों की और पोश इलाकों की, तो वहाँ पर तो चेक एंड बैलेंस जो है वो खासा मजबूत होता है। अगर खिलाफ कानून किसी भी इमारत की बगैर नक्शा तामीर की जाती है या बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी की जाती है तो वहाँ पर नोटिस भी सर्व होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके और वो इलाके जो पसमानदा हैं वहाँ पर इतनी एनफोर्समेंट ज़्यादा नहीं होती। जैसा कि ये इलाका भी एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पर तक पहुँचने में भी खासी दुश्वारी, जैसे रेस्क्यू टीमों को भी बताया गया कि हुई, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने उस तरह इन्फोर्समेंट को यकीनी नहीं बनाया और वैसे नोटिस सर्व नहीं किए। हाँ, इस तरह होता है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मानसून के सीज़न से कबल जो है वो नोटिस जारी करती है, अखबारात में इश्तिहारात भी देती है और 3 किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, एक नीम खतरनाक इमारत, एक खतरनाक इमारत और एक इंतहाई खतरनाक इमारत, और इनको कैटेगराइज करके हुए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, नोटिस सर्व करवाए जाते हैं, इनकी मुरम्मत करवाई जाती है या फिर इनको जो इंतहाई खतरनाक इमारतें होती हैं उनको सील किया जाता है। जो कि यहाँ पर इमारत मौजूद थी वो कि इंतहाई खतरनाक थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो उसको कोई नोटिस सर्व किया गया, ना ही उसको सील किया गया और ना ही दौरान कंस्ट्रक्शन जो SOPs अपनाए जाने चाहिए, सेफ्टी SOPs, उन पर अमल दरामद किया गया, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया और 14 बच्चे नन्हे फूल जो है वो मलबे तले दबकर अपनी जान की बाजी गवा बैठे। जी सही, ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। दानियल, आपने भी हमें अपडेट किया और जहांगीर आपने भी हमें अपडेट किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।